السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ محترم سامعین، میں آپ کے سامنے بذریعہ سوشل میڈیا روبرو ہوا ہوں۔ حضرات، جب انسان دنیا میں اپنی اوقات پہچان لے گا تو پھر کسی کے پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرے گا۔ جب انسان اپنی اندر کی غلطیاں محسوس کر لیں گے تو پھر کسی کے غلطی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، اس کی سوچ اور ارادہ دوسروں کی طرف نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ ایک انسان کامل اسی وقت ہوتا ہے جب وہ انسان اس چیز کو محسوس کرے کہ دنیا سے ہمیں کوئی سروکر نہیں، دنیا کے لوگوں سے ہمیں کوئی سروکر نہیں، کیونکہ ہم اس دنیا میں اکیلے آئے ہیں اور ہم اس دنیا سے اکیلے ہی جانے والے ہیں۔ قبر میں جب حساب و کتاب ہوگا تب آپ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ دنیا میں تمہارا سب سے بڑا دشمن کون تھا۔ قبر میں جب آپ کا حساب لیا جائے گا تب آپ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ دنیا میں تمہارا خاص دوست کون تھا۔ جب نامہ اعمال قیامت کے دن پیش کیے جائیں گے تو یہ نہیں کہا جائے گا جو تمہارا سب سے بڑا دشمن تھا ان کو سامنے لاؤ۔ یہ نہیں کہا جائے گا تمہارا جو خاص دوست تھا ان کو لے کر آؤ، تمہاری نیکیوں میں کمی پڑ گئی ہے، تم ان کی نیکیاں ان سے مدد مانگ کے کچھ اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لو۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارا اعمال اور تمہارے لیے تمہارا اعمال۔ شرط ہے کہ انسان زندگی کی حیثیت کو پہچانے، اپنے آپ کی حیثیت کو پہچانے۔ دوسروں کے پیچھے پڑنے سے، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنے سے پہلے انسان اگر اپنی حقیقت پہچان لے تو انسان کبھی بھی کسی دوسرے کے پیچھے نہیں پڑے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو برے گمان سے بچا کرو، بدگمانی سے بچا کرو، اس لیے کہ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ بدگمانی کرنے والا بہت بڑا گنہگار ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہمیشہ کسی کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن سوچا کرو، دوسروں کے بارے میں اچھی چیزیں اور اچھائی محسوس کرو۔ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ دوسروں کے بارے میں جب یہ سوچتے ہیں کہ فلاں کیا کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ جب وہ انسان کسی ہوٹل کی طرف جاتا ہے اور اس ہوٹل کے پیچھے اگر فلم ہال لگا ہو یا پھر اس فلم ہال کے پیچھے ہوٹل لگا ہو، میرے بھائیوں اگر ہم اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیں، اللہ کی قسم وہ اگر اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ جائے کہ مجھے ہوٹل میں کھانا کھانا ہے، مجھے تناول کرنا ہے، مجھے سیراب ہونا ہے، اور آپ نے یہ نیت کر لی کہ ہم اس کا پیچھا کرتے کرتے جائیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ وہ آدمی ہوٹل جا رہا ہے یا فلم ہال جا رہے ہیں، اللہ کی قسم وہ انسان اگر صحیح نیت صحیح ارادے کے ساتھ ہوٹل جا رہا ہے تو آپ بہت بڑے مجرم قرار پاؤ گے، آپ بہت بڑے گنہگار ثابت کیے جاؤ گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بہت بدگمانی سوچنے سے بچا کرو، اس لیے کہ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے، اور جو کوئی انسان کسی کے بارے میں برا سوچتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ انسان خود گنہگار ہے۔ مجھے لائیو آنے کا مقصد یہی ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں
चाहे जैसे ही चलना हो, अगर मैं अपनी जगह पे ठीक हूँ तो दुनिया चाहे हमारे कितने ही मुखालिफ बन जाएं, दुनिया चाहे हमारी कितनी ही मुखालिफ करके, हमारी मुखालिफत बयानबाजी करके, हमारे बारे में भड़काऊ भाषण देकर, हमारे बारे में लोगों को बरगला करके हमारी ऐब और हमारी कमियां, हमारी तनकीस निकालने की कोशिश करें, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मुझे जलील करने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि मैंने इज़्ज़त और जलील की जिम्मेदारी खुद ले ली है। मैं जिसे चाहूँगा इज़्ज़त दूँगा, जिसे चाहूँगा जलील करूँगा। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। मेरे भाइयों, इज़्ज़त का मालिक अल्लाह ताला है, ज़िल्लत का मालिक अल्लाह ताला है। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, पूरी दुनिया की ताकत एक तरफ हो जाए और अल्लाह कहे नहीं मैं उस बंदे को जलील करूँगा, तो कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं जो उसको इज़्ज़त दिला सके। और अल्लाह कहे कि मैं उसको इज़्ज़त दूँगा, तो फिर पूरी दुनिया मिल के अगर उसको जलील करना चाहे तो नहीं कर सकता है। मेरे प्यारे साथियों, हम क्यों दूसरों के पीछे पड़ें? खाम का हम दूसरों के पीछे पड़कर अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करें? क्योंकि एक बात याद रखिएगा, इंसान जब किसी के पीछे पड़ता है, इंसान जब किसी के पीछे पड़कर उसको जलील करना चाहता है और ये समझता है कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा, एक बात याद रखिएगा, कोई इंसान दौड़ रहा है और आप उसको दौड़ा रहे हैं, वो आखिरी मंजिल पे जाते जाते वो अगर खाई में गिरेगा तो एक बात याद रखिएगा, आप भी उस खाई में गिरेंगे। वो अलग बात है कि आप गिराने वाले हैं, वो गिरने वाले नहीं है बल्कि उसको कोई गिराया जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, आप भी गड्ढे में गिरेंगे, वो भी गड्ढे में गिरेंगे। खामखा हम और आप दूसरों के पीछे पड़कर उसकी इंसल्टी करके, उसकी बेइज्जती करके, फला जगह पे अपनी बयानबाजी, गलत बयान देकर उसको रुस्वा करने के चक्कर में लगे हुए हैं कि कब इंसान को गिराया जाए, कब इंसान को उसके मकसद से हटाया जाए। अल्लाह फरमाता है, इंसानों घबराओ नहीं, मुसलमानों घबराओ नहीं, अल्लाह जिसके साथ है दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ नहीं कर सकती। अल्लाह जिसके साथ है, दुनिया में आप हज़ारों डिग्रियां खरीद सकते हैं पैसों से, दुनिया में आप हज़ारों डिग्रियां पैसों से, दौलत से खरीद सकते हैं। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ और बड़े बड़े जामिया को, बड़े बड़े इदारों को आप अपने मातहती कर सकते हैं, लेकिन इल्म एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया की ताकत से, दुनिया के पैसों से, दुनिया के माल से आप उस इल्म को नहीं ख़रीद सकते हैं। आप कलम ख़रीद सकते हैं 3 रुपया वाला, 3 रुपये से लाख रुपया वाला कलम ख़रीद सकते हैं, लेकिन इल्म नहीं ख़रीद सकते हैं। दुनिया में आप किसी इंसान को जलील करने के लिए रास्ता हज़ारों बना सकते हैं, लेकिन आप उसको बेइज्जत करने के लिए, आप उसकी इंसल्टी करने के लिए आप चाहे कुछ भी कोशिश करें, आप नहीं कर सकते हैं। फला जगह पे मेरे बारे में ख़बर आई, फला अवाम को गुमराह बनाता है, जामिया सल्फिया का नाम देकर अपने आप की इज्जत बढ़ाता है। जामिया सल्फिया में ना इनका कोई रिलेशन है, न ये जामिया सल्फिया का तालिब इल्म है। अफसोस होता है, कुछ ही दिन पहले एक मौलाना का फ़ोन आया, जिन्होंने मुझे अपने फ़ोन पर ये बात कही कि आपके बारे में ये फला जगह पे मीटिंगें हुई, फला मौलाना ने आपके बारे में ये बदगुमानी ज़ाहिर किया, आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें कही कि आप जामिया सल्फिया के है ही नहीं, आपने एग्ज़ाम तक नहीं दिया, आप इंसान को झूठा, आप इंसान के सामने झूठा दावा पेश करते हैं, अवाम को गुमराह बनाते हैं, आपका जामिया सल्फिया से कोई रिलेटेड नहीं है, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। फिर मेरे भाइयों, उन्होंने मुझसे सनद मांगी, जब मैंने उनको सनद पेश किया तो फिर विश्वास किया। मेरे भाइयों, दुनिया के किसी भी इदारे में हम पढ़ें, दुनिया के किसी कॉर्नर, किसी गोशे में हम तालीम हासिल करें, उससे कोई मतलब नहीं। अगर मैं सही बात पेश कर रहा हूँ उसको आप लीजिए, अगर मैं गलत राह पर हूँ, गलत बात आपके सामने जाती है, आप उसको छोड़ दीजिए। बहुत बड़े बड़े इमाम हमारे असलाफ में गुजरे हैं, उन्होंने ये दावा नहीं किया कि हमारी सारी बातें सच्ची हैं, हमारी सारी बातें हक़ का दावा करती है। उन्होंने ये कहा कि मेरी बातें अगर सहाबा से टकरा रही है तो सहाबा की बात ले लेना, मेरी बात छोड़ देना। मेरी बात ताबे व ताबेई से टकरा रहा है तो आप उनकी बात ले लेना, मेरी बात छोड़ देना। मैं उनके बिल मुकाबिल 0 बटे सन्नाटा हूँ, आप कैसे मेरी सारी बातों को ले सकते हैं? मैं अगर हदीस व कुरान के मुआफिक, मैं अगर उलमा
उलमा असलाफ के मुताबिक मैं अगर सहाबा ताबे व ताबईन के कौल के मुताबिक बयानबाजी करूं तो आप उस बात को ले लीजिएगा, वरना मेरी तरफ से कही हुई बातों को, गढ़ी हुई बातों को आप ठुकरा दीजिएगा। लेकिन मेरे इल्म के पीछे, मेरे मकाम के पीछे कहाँ से तालीम हासिल किया, इन सब चीज़ों के पीछे पढ़ने से आपका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। चाहे मैं आवाम को इस बात पर धोखा दूं कि मैं कहीं से भी इल्म हासिल करूं, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ से इल्म हासिल किया है, बल्कि देखा यह जाएगा कि फ़ला कुरान से दलील दी है या नहीं, फ़ला हदीस से वाज़ेह की या नहीं, फ़ला चीज़ हदीस में मौजूद है या नहीं, कुरान में इसका जिक्र है या नहीं, सहाबा से इसकी बात मिलती है या नहीं, उलमा असलाफ से इसकी बात मिलती है या नहीं। मेरे भाइयों, सहाबा इकराम वो थे कि हर जगह पे अगर कोई उनसे छोटा आदमी, उनके बिलमुकाबिल चाहे कम ही दर्जे का आदमी अगर उनके सामने कोई ऐसी बात कह देते जिनकी बात कुरान और हदीस से मुआफिक हो जाती, सहाबा इकरार कर लेते, आमन्ना व सद्दक़ना, अपनी बातों से रुजू करके उस बात की तरफ लौट आ जाते थे और कहते थे कि हम तुम्हारी बातों पर ईमान लिया है, क्योंकि ये बातें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है, क्योंकि ये बातें कुरान में इसका जिक्र मौजूद है, क्योंकि ये बातें हदीस में इसका जिक्र मौजूद है, क्योंकि ये बातें अल्लाह ताला की तरफ से है। मेरे भाइयों, हम और आप किसी के पीछे क्यों पड़े कि कहाँ से इल्म हासिल कर रहा है, नहीं कर रहा है। मेरे भाइयों, हमारे अंदर ये चीज़ बकसरत पाई जाती है कि हम किसी के पीछे पढ़कर उनके यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि फला का रहने वाला कहाँ है, फला किस मरकज़ से ताल्लुक़ रखता है। वो अगर सही मरकज़ से ताल्लुक़ रखता भी है, लेकिन उसको बदनाम और उसको जलील करने के लिए हम और आप अवाम में ऐसी ऐसी भाषण, ऐसी ऐसी कहावतें और बयानबाजी देते हैं, उसको इज़्ज़त की कुर्सी से हटाने के लिए। एक बात याद रखिएगा, इज़्ज़त अल्लाह देता है, ज़िल्लत और रुसवाई अल्लाह देता है। जब अल्लाह किसी को आज़माए, अल्लाह किसी का इम्तिहान लेना चाहें और इंसान ये समझ लें कि हम उस मकसद में कामयाब हो जाएंगे, भली अल्लाह आज़माएं, उसका दिल, इरादा, ईमान अगर मजबूत हैं तो इंसान कामयाब हो जाएगा, वरना नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आज़माइश अल्लाह ताला ने की थी कि तुम अपने बेटे को कुर्बानी दो, तुम अपने बेटे को ज़िबा करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब इब्राहीम की आज़माइश की, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, ए बेटे, ऐसी ऐसी बात है, अल्लाह ने मुझे ख्वाब में दिखाया। बेटे ने कहा, इंशाअल्लाह सतजिदुनी, इंशाअल्लाह आप कुर्बानी कीजिए, मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। तो मेरे भाइयों, ईमान मजबूत होना चाहिए, दिल मजबूत होना चाहिए, इरादा मजबूत होना चाहिए। जब तक हमारा दिल और इरादा, नीयत मजबूत नहीं होगी, हम और आप किसी भी मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। हमारा और आपका काम यही है कि हम अच्छी बातों को अपनी तरफ नहीं लेंगे, जबकि इस्लाम हमें यह सिखाता है कि अगर किसी भी बिरादारी के हो, किसी भी कौम के रहने वाले हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हो, किसी भी आज़म के रहने वाले हो, आज़मी हो, मेरे भाइयों, अरबी ना हो, आज़मी हो, अगर उनसे भी कोई अच्छी बात आपको मिल रही है तो आप उसको ले लीजिए। लेकिन हम और आप देख रहे हैं उनके अंदर कुछ कमियां मिल जाएं, उनके अंदर कुछ नुक्स मिल जाएंगे, उनकी सारी बातों को रिजेक्ट करके नहीं, ये नहीं चलेगा। दुनिया में कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता है, चाहे सहाबा क्यों ना हो, ताबे व ताबेई क्यों ना हो, दुनिया के अंदर बड़े बड़े इमाम गुजरे हैं, दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े सलफ़ गुजरे हैं। उलमाए असलाफ का यह अक़ीदा नहीं था कि हमारी सारी बातें अच्छी है, वरना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की इतनी सारी किताबें हैं, इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की इतनी सारी किताबें हैं, हाफिज़ इब्न हजर अल अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह की इतनी किताबें हैं, लेकिन उन्होंने अपनी किताब में दावा नहीं किया कि हमारी सारी बातें अच्छी है। उन्होंने अपनी किताब में दावा नहीं किया कि हमारी सारी कही हुई बातें मुहम्मद रसूलुल्लाह के मुआफिक है, बल्कि उन्होंने दावा किया अगर मुझसे ख़ता हो जाए, इंसान होने के नाते उस बात को आप रिजेक्ट कर दीजिएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को ले लीजिएगा। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहा करते थे, कई लोगों, मैं इंसान होने के नाते कुछ अगर तुम्हें राय दूँ, कुछ मशवरा दूँ तो आप उसको ले सकते हैं, वरना आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। हाँ, हदीस और कुरान के मुआफिक मैं कुछ बात कहूँ तो आपको उसको लेना पड़ेगा, और अगर मैं इंसान होने के नाते कुछ मशवरा दूं, आप उसको ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। मैं इंसान हूँ,
इंसान होने के नाते मुझसे भी अगर ख़ता हो जाए, इंसान होने के नाते मुझसे भी अगर गलती हो जाए तो मुझे फरिश्ता ना समझ लेना, क्योंकि फरिश्ता वो होता है जिसके पास खता की कोई डायरी ना हो। फरिश्ता वो होता है जिनसे कोई गलती ना हो, और शैतान वो होता है जो अपनी गलती करके भी उस चीज़ से रुजू ना करें। मेरे भाइयों, एक इंसान वो है, एक इंसान की तारीफ वो है, इंसान जब गुनाह करता है उस गुनाह से जब रुजू कर लेता है, सबसे बड़ा कामिल इंसान वही है, सबसे बड़ा अच्छा इंसान वही है। फरिश्ता वो है जिनसे खता ना हो, और शैतान वो है जो गुनाह करने के बाद भी हट धर्मी करें, अपनी बातों से रुजू ना करें। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, हम इंसान हैं, हमसे अगर खता हो जाए, मेरे भाइयों, इंसान होने के नाते जब मैं कुछ भूल जाऊं, नमाज में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूले थे। ज़ोहर का वाक़या, ज़ोहर की नमाज़ आप पढ़ा रहे थे, आपने 4 के बजाय 5 रकात नमाज़ पढ़ा दी। आजकल अगर इमाम 5 रकात नमाज़ पढ़ा दे, उनका मज़ा इतना लिया जाता है, आलिम उलमा भी इतना मज़ा लेंगे और उनके बारे में कहेंगे इनका ध्यान कहाँ भटकता रहता है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, क्या नबी का ध्यान भटका हुआ था? नहीं, इंसान की ज़हनियत है, दिल पलटता है, ज़हनियत बदलती है, सोच बदलती है, इरादा बदलता है, इंसान की सोच मुख्तलिफ होती है। इस एतबार से कोई इमाम अगर ख़ता कर जाए, आप उसको ये ना कहें कि फ़ला इमाम को कैंसिल करा दिया जाए। मेरे भाइयों, आजकल ऐसा होता है कि बाप अपने बेटी की सारी गलतियाँ, बाप अपनी बेटी की सारी खामियाँ उन्हें नज़रअंदाज करके अपने घरों में रख देते हैं, लेकिन कोई इमाम अगर मस्जिद में 5 वक्त के बजाय एक वक्त में 1 रकात में कुछ अगर गलती से कोई 1-2 आयत ही गलती से पढ़ दे, मेरे भाइयों, मोहल्ले से आवाज़ ये आएंगी, इस इमाम को रिजेक्ट कर दिया जाए, बदल दिया जाए। इमाम रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, हम रहेंगे तो इमाम नहीं रहेगा। ये उसूल और ज़ाब्ता बन गया है। हम और आप मनहज को भूल गए हैं, हम और आप उसलूब को भूल गए हैं। न किसी मौलवी के अंदर ये इस्लाह करने की तमीज़ है, न किसी मौलवी के अंदर उसलूब पाया जाता है, न किसी आलिम के अंदर बड़े बड़े आलिमों से मेरा मुकाबला हुआ, सामना हुआ, कुरान और हदीस को भूल बैठे हैं। इस्लाह इस अंदाज से किया जाता है मेरे भाइयों कि उस जगह पे शर्म से डूब कर मर जाएगा वो इंसान जिसके बारे में इस्लाह की जाती है। इस्लाह करने का अंदाज और तरीक़ा ये नहीं था। मेरे नबी का तरीक़ा, मेरे नबी का मनहज वो था, एक शख्स जिना की इजाज़त के लिए, परमिशन के लिए अल्लाह के नबी के पास आते हैं और अल्लाह के नबी से सवाल करते हैं, अल्लाह के नबी मुझे जिना की इजाज़त दीजिए। आपने कहा ये नहीं है, जूती नहीं उठाया, चप्पल नहीं उठाया कि भागो यहाँ से, बल्कि आपने मनहज और अंदाज बयान किया, क्या है फला, अगर तुम्हारे माँ के साथ, तुम्हारी बीवी के साथ, तुम्हारी बहन के साथ अगर ऐसा काम करे तुम्हें कैसा लगेगा। लेकिन मेरे भाइयों, चौराहे पे इंसल्टी किए जा रहे हैं, स्टेजों पर इंसल्टी और बेइज्जती किए जा रहे हैं। ऐसी इस्लाह जिनसे वो इंसान इस्लाह नहीं बल्कि वो इंसान इस्लाम छोड़कर ही बैठ जाएंगे। इसलिए कहा गया है कोई अगर इस्लाम कबूल करता है तो सबसे पहले आप उसको इस्लाम के ढांचे में ढलिए। आप ये नहीं कि तुम्हारे ऊपर नमाज फर्ज की गई है। अगर आप किसी इंसान से कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर नमाज फर्ज है, आप उनसे ये नहीं कहिए कि 4 रकात फर्ज की गई है, 5 रकात। आप उसको धीरे धीरे में लाइए। ये हुआ इस्लाह का तरीका, ये हुआ उसलूब, ये हुआ मनहज। लेकिन मेरे भाइयों, हम और आप वो चीज़ भूल बैठे हैं। हमारे अंदर इल्म की अगर कसरत पाए जाए, हमारे अंदर इल्म का अगर पैमाना, इल्म का खजाना उसात हो जाए, मेरे भाइयों, हम और आप गुरूर में आ जाते हैं। हम किसी को 2-4 अल्फाज देने के लिए तैयार नहीं है। हदीस ये कहती है, कुरान ये कहता है, तुम्हारे पास कोई अच्छी बात है, तुम्हारे पास कोई अगर अच्छी चीज़ है, आप उसको दूसरों तक पहुंचाइए। बल्लिगु अन्नी वलौ आया, एक ही अल्फाज अगर तुम्हारे पास है दूसरों के पास पहुंचाइए। मेरे भाइयों, हदीस का मजाक उड़ाया गया, कुरान का मजाक उड़ाया गया। बड़े आलिम बनकर आओ, दुनिया के अंदर सारी मालूमात हासिल करके आओ, तब दूसरों के पास पैगाम पहुंचाओ। मेरे भाइयों, इस्लाम ये नहीं कहता है। डॉक्टर जाकिर नाइक का बेटा उन्होंने खुद फतवा दिया कि अगर हमारे पास एक ही इल्म, हम उसको दूसरों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि दुनिया के अंदर कोई इंसान चाहे कि सारी मालूमात हासिल कर लेंगे, नहीं कर सकता है। क्योंकि अल इल्म कल बहर, इल्म समंदर की तरह होता है और समंदर का पानी कभी ख़त्म नहीं होता है, समंदर का पानी कभी सूखता नहीं है। मेरे भाइयों, नदियाँ सूख जाएंगे, मेरे भाइयों, तालाब सूख जाएंगे, पोखर सूख जाएंगे, लेकिन समंदर का पानी कभी नहीं सूखेगा। इसलिए मेरे भाइयों, अगर हमारे अंदर इल्म कमी है, हम उसको दूसरों के अंदर जो भी हमारे अंदर है, अगर सही तरीके से हमारे पास जानकारी है, हम दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, ये होता है कि हम गुरूर में आ जाते हैं, तकब्बुर में आ जाते हैं
کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، ہم تو خود بڑے ہیں، ہم سے بڑا کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ اگر ہم کچھ بیان کریں گے ہمیں اس کی اجرت چاہیے، ہمیں اس میں نام چاہیے۔ جب ہمارا کوئی نام لے گا میرے بھائیوں، جب ہماری کوئی تعریف کرے گا ہماری شان اقدس میں ہمارا نام زیادہ سے لیا جائے گا، گویا کہ ہم سیاہ و سفید کے مالک بن جاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ایسے علماء اور ایسے علم والے، ایک بات یاد رکھیے گا، علم ہو جانا بڑی بات نہیں ہے۔ علم حاصل کرتا ہے جب کوئی انسان، اس کے پاس آٹومیٹک علم آ جاتا ہے، علم کی گہرائی تک وہ انسان پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کے اندر غرور ہو، اس کے اندر گھمنڈ ہو، وہ علم کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ میرے بھائیوں، جو آپ کے اندر علم ہے آپ اس کو عمل میں لائیے، عمل میں لانے کے لیے لوگوں کو ترغیب دلائیے، اس کو پریکٹس میں لائیے، دوسروں کو بھی تلقین کیجیے، تبھی آپ کامل ایمان اور کامل مومن بن سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ ورنہ یہ علم، ابو جہل کے پاس جس طرح عربی کی جانکاری سب سے زیادہ معلوم ان کے پاس علم تھا، ابلیس کے پاس علم تھا، سب سے بڑے عبادت، سب سے بڑے عابد مانے جاتے تھے ابلیس، لیکن ان کے پاس جب غرور آیا اللہ نے اس کو جنت جیسی نعمت والی جگہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے کوئی اگر غلطی کرتا ہے آپ اصلاح کرنے کی طرح اصلاح کیجئے، جو اصلاح کرنے کا انداز ہے، اصلاح کرنے کا اسلوب ہے، اس طرح سے اصلاح کیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ انسان دین سے مکر جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ اسلام کو ہی ترک کر بیٹھے، ایسا نہ ہو کہ وہ اسلام سے ہی ہٹ جائے۔ میرے بھائیوں، ہر دھرمی کسی مذہب کی تعلیم نہیں ہے، ہر دھرمی کوئی علم، کوئی مذہب آپ کو سکھاتا نہیں ہے کہ آپ ہر دھرمی کریں۔ آپ کے پاس علم ہے، آپ اس کو پہنچانے کی کوشش کیجئے، تحریر کی شکل میں پہنچائیے، زبان کے ذریعے پہنچائیے۔ آپ کے پاس زبان نہیں، تحریر سے پہنچائیے۔ تحریر نہیں ہے، آپ کے پاس ٹوٹی پھوٹی زبان ہے، اسی کے ذریعے سمجھائیے۔ میرے بھائیوں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ترنم کے ساتھ علم کو پہنچائیے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، کسی کی انسلٹ کرنے سے پہلے خود کے بارے میں سوچنا چاہیے، کسی کی اصلاح کرنے سے پہلے آپ اصلاح کا طریقہ سیکھیے، اصلاح کرنے کا انداز سیکھیے، اسلوب سیکھیے۔ آپ عالم ہے، علماء ہے، اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن آپ سے اگر کوئی استفادہ نہیں کر پا رہا ہے، آپ سے اگر کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو آپ کا علم آپ تک باقی رہے گا، آپ کا علم آپ کے لیے خاص رہے گا، دوسروں کا فائدہ نہیں ہوگا، امت کا فائدہ نہیں ہوگا، قوم کے لیے فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے علم کے ذریعے امت کی خدمت کر پائیں، دین کا خدمت کر پائیں، تو اصلاح کرنے کا انداز سیکھیے، اسلوب سیکھیے، طریقہ سیکھیے، منہج سیکھیے۔ میرے بھائیوں، میں یہیں سے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بارہلا ان تمام کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے اندر جو غلطیاں ہو رہی ہے ہم اور آپ اس چیز کو نظر انداز نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے بارہلا ہمارے اندر ان کوتاہیوں کو دور عطا فرما، اور عمل صالح کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق سے نوازا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔